In this video, we will discuss about vector product or cross product. So we start with the definition of vector product or cross product. So first we define vector product or cross product for two vectors. So we define as the vector product or cross product of two vectors, vector A and vector B is a vector whose magnitude is AB sin theta. अब ये ध्यान रखना है आपको, दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, वेक्टर ही होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज ए बी कॉस थीटा. तो वी कैन राइट डाउन एज वेयर थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स and whose direction is that of unit vector n cap. So which is perpendicular, we write down as perpendicular to both vector A and vector B. When we define the cross product or dot product of two vectors, so we can give the representation. So suppose this is the vector A, this is vector B, this makes a angle theta, so this is angle theta, and this is the unit normal, this is the unit vector, we denoted as n cap. So this is the unit vector, we denoted by n cap. अब इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हम जो एन कैप ले रहे हैं, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट. यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी और एन कैप वी हैव टेकन आर टेकन इन द राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, राइट हैंडेड ओरिएंटेशन. और दो तरीके की ओरिएंटेशन हम स्टडी करते हैं, एक तो राइट हैंड ओरिएंटेशन और एक लेफ्ट हैंड ओरिएंटेशन. अब राइट हैंड ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो टर्निंग होती है, राइट हैंड ओरिएंटेशन मतलब तो जो टर्निंग होगी हमारी वो वेक्टर ए इनटू द वेक्टर बी टू एन कैप इन द डायरेक्शन दैट राइट हैंडेड स्क्रू वुड बी प्रोग्रेस टू टर्न. तो हम जब जैसे राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम डिफाइन करते हैं, तो जैसे हमने डिफाइन किया राइट हैंड सिस्टम, तो एक्सिस में हम डिफाइन कर देते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे ले दी, देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, वी टेक एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अब जब लेफ्ट हैंड ओरिएंटेशन हम दिखा रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड ओरिएंटेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड ओरिएंटेशन, लेफ्ट हैंड ओरिएंटेशन. और सिस्टम वी कैन सी दैट राइट हैंड ओरिएंटेशन के लिए सेम फिगर हमने यूज की, सेम फिगर यहाँ पर हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारा दैट इज एक्स एक्सिस, ऑल आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. और राइट हैंड ओरिएंटेशन दिस कैन बी represented as right handed
orientation, or we can say that system. The thumb rule we also called a thumb rule. Now, when we do the cross product of two vectors, that means this is represented as A cross B, or you can write down in bracket AB. So we can read as A cross B. So we can read as A cross B, or when we represent this, so we can represent it the cross product of two vectors A cross B is equal to AB sine theta n cap. So n cap is the unit vector perpendicular to A and B. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B विच इज AB sin थीटा. तो मैग्नीट्यूड उसका होगा AB sin थीटा. नाउ अब पैरेलल कंडीशन देखते हैं कि वेक्टर्स की जो पैरेलल कंडीशन होगी वो क्या होगी. तो पैरेलल कंडीशन जैसे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें करना है किसी भी वेक्टर का, तो हाउ टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली. So we write down here as geometrical representation, geometrical representation of vector product. So we consider let OACV be the parallelogram, and O is the origin. So let, so first we draw the parallelogram. So parallelogram we draw as, so here we write down this is O, this is D, or we consider as B, C, and now so for A we can take as O, A, C, D. So this we can take as A, not D. So here we use the sides OA equal to A. So this is our A side, OA equal to A, and OB is equal to B. So this is A vector A or vector B. So this is vector B or vector A. So we write down as OA equal to vector A, and OB we take as, that is vector B. Let the angle AOB. So the angle we assume as theta. So AOB we consider as theta. So then the area, अब एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is equal to twice of triangle OAB, or triangle OAB so twice into area of triangle OAB. So this will be 1 upon 2 AB sin theta. So this will be 1 upon 2 AB sin theta, and this can be gives us AB sin theta.
So we write down as A cross B, so which gives us AB sin theta. For AB sin theta, this is the area of parallelogram. Area of parallelogram. Now अब बात करते हैं हम, जैसे वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए. नाउ वी टॉक अबाउट द पैरेलल वेक्टर. तो फॉर पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होगा कि जैसे दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, जब उनके बीच में एंगल जीरो होगा, थीटा इक्वल टू जीरो होगा. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा. तो मीन साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है. और साइन फाइव ऑल्सो जीरो होगा. साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो जीरो. तो देन वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर. तो टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर केस. अब जब पर्टिकुलर केस की बात करते हैं हम, तो फॉर पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए. अब दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे गिव्स अस जीरो ऑलवेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, तो ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर, so then the cross product of two vector a cross b, this is equal to sin theta. So theta is the angle between them. So you remember these formulas, that means क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का करते हैं सेम वेक्टर का तो जीरो आता है, और यूनिट नॉर्मल, दैट मीन यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है. अब आते हैं, हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की आई जे के साथ. तो नेक्स्ट हमारा है यूनिट वेक्टर आई जे और के. अब ये यूनिट वेक्टर है आई जे और के. अब आई जे के को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने सपोज दिस इज अ वेक्टर आई, हियर वी कंसीडर एज वेक्टर जे, एंड दिस इज अवर वेक्टर के. अब जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वी मूव टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब वेक्टर ये हमें पर्टिकुलर केस देख ही लिया, अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा. तो जब हम सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, और के क्रॉस के ये जीरो होगा. अब सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जीरो आएगा. अब बात करते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि जब हम वेक्टर आई है उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जे के साथ कर रहे हैं तो दिस गिव्स अस वेक्टर के, और वेक्टर जे का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ कर रहे हैं, दिस गिव्स अस वेक्टर आई, और वेक्टर के का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आई के साथ कर रहे हैं, दिस गिव्स अस वेक्टर जे. तो ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अब अपोजिट बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से मूव करेंगे, तो वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर के साथ कर रहे हैं,
वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दिस विल बी द -j। अब सेम वेक्टर के का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जे के साथ कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा वेक्टर आई। और वेक्टर जे का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आई के साथ कर रहे हैं, दिस गिव्स अस -k। तो ये आपको याद रखने हैं, और ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सेम वेक्टर के साथ हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब सेकंड वे क्या है रिप्रेजेंट करने का, किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हियर वी रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो लेट वी टेक एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, we consider as vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k। वेक्टर बी हमने ले लिया, दैट इज b1i प्लस b2j और प्लस b3k। नाउ वी परफॉर्म द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a क्रॉस b। अब सिंपली तो हमें ऐसे ही लिखना है, a1i प्लस a2j और प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j और प्लस b3k। नाउ अब हमें जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें याद रखने होंगे कि आई क्रॉस आई 0 होगा। जब आई क्रॉस आई 0 होगा तो जैसे अब हमें फॉर्मुलेट करना है, इसको लिखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो फर्स्ट वेक्टर स्केलर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 और b1 क्या है, हमारे स्केलर्स हैं, a1 v1, और इधर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई, a1 v1 इंटू आई क्रॉस आई, प्लस अगला टर्म क्या आएगा, 1/1 हम फॉलो करते हैं, तो ये आ जाएगा a2 और b1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा j क्रॉस आई, और प्लस a3 b1, और ये क्या आ जाएगा, k क्रॉस आई। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ हो गया। ऐसे ही आप सेकंड टर्म के साथ लिख सकते हो और थर्ड टर्म के साथ लिख सकते हो। लेकिन ये क्या है, लेंदी प्रोसीजर है। अब इसको हमें जैसे सिंपलीफाई करना है, तो बेसिकली हम सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, और सिंपलीफाई करके इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आते हैं, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। डिटर्मिनेंट हमारा, जब टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई जे के, और a1 a2 a3 और b1 b2 और b3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस गिव्स अस द दिस फॉर्म। सो दैट मीन्स अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आगे कंटिन्यू हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो इजीली कर सकते हैं, इट मीन्स अब b2 के साथ लिखना है हमें, तो ये आ जाएगा a1 इंटू b2, और फर्स्ट हो जाएगा आई क्रॉस जे, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a2 इंटू b2 और जे क्रॉस जे, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a3 इंटू b2 और के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे अब रह गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हम क्या लिख देंगे इसको, ये जाएगा a1 b3 आई क्रॉस के, और प्लस a2 b3 जे क्रॉस के, और प्लस a3 b3 और के क्रॉस के। तो यहाँ से अब हम क्लियरली कर सकते हैं, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो तीनों 0 हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गए तीनों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। अब आते हैं हम बात जे क्रॉस आई पे। जे क्रॉस आई,
जे क्रॉस आई क्या होगा, दैट मीन्स हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये माइनस के हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन इन वन स्टेप। तो इसको आप लिख सकते हो A2 B1, और ये हो जाएगा माइनस का के। अब के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई, आई जे के क्रॉस आई तो प्लस होगा, तो के क्रॉस आई तो जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे, और प्लस A3 B1 और जे, और आई क्रॉस जे, आई जे के, तो ये B1 A1 B2, और ये हो जाएगा वेक्टर के, और प्लस A3 B2 के और जे, के जे दैट इज माइनस आई, और प्लस A1 B3 आई और के, तो आई के, तो ये हो जाएगा माइनस का जे, और प्लस A3 B3 और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब आई जे के साथ में तीनों को लिख देंगे, तो पहले हमें जैसे आई के साथ लिखना है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, A3, ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ये होगा क्या, A1 B3 और A2 B3, ये A2 होगा, A2 B3, तो यहाँ पे आएगा A2 B3, तो ये आ जाएगा A2 B3, तो A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू वेक्टर आई, और नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, प्लस जे, जे के साथ में पॉजिटिव है हमारा A3 B1, और माइनस का है A1 B3, A1 B3, ये है वेक्टर जे, और प्लस के साथ में क्या है हमारा A1 B2, और माइनस A2 B1 इंटू वेक्टर के। और जब इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे, दिस विल इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, सो व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन यूज डिटर्मिनेंट डायरेक्टली, तो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ, अब इसके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट द यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट द यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors 2i minus j plus k and 3i plus 4j minus k is minus 3i plus 2j plus 11k upon 155। तो फर्स्ट we solve the cross product। So now the cross product, so unit vector perpendicular to each vector, so which is this, so here we will calculate the value of unit vector। Now cross product, so when we obtain the cross product, so the cross product is 2i minus j plus k into cross product of 3i plus 4j minus k, which can be evaluated as vector I j k upon 2 minus 1 1 3 4 minus 1, और डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 -1 दोनों को नेगेटिव है तो +1 आ जाएगा, और माइनस
4 -j, -j के साथ 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 और -3 और प्लस के लिए 2 4 जा 8 और 8 और माइनस माइनस +3। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3i, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5j और प्लस का 11k। तो नाउ अब इसका क्या कर लेंगे, मॉडुलस। तो द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, और इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस वी कैन कैलकुलेटेड एज -3 स्क्वायर +5 स्क्वायर और +11 स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 11 11 121। तो 121, so the sum of this these equal to 34 35 और 20, so 155, 155। so then we calculate the unit vector, hence the unit vector in the direction। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब हमारा ये सपोज कर लो कोई वेक्टर ए हो गया, या हम सी से डिनोट कर दें, ये हमारा वेक्टर सी है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा सी कैप, वो क्या होगा, वो सी कैप होगा वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो दिस विल बी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, -3i और +5j और +11k अपॉन 155। So this is the answer.